Hello students, good morning. Today we are going to start part 5 and this is the last video of this chapter of the nationalist movement in Indochina. अभी तक हम इस चैप्टर में डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. We have studied about religious movements, social movements and educational movements and other cultural movements. और साथ में सबसे बड़े मूवमेंट जिसको हम कम्युनिस्ट मूवमेंट कहते हैं, द रोल ऑफ कम्युनिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विमेन. द टॉपिक नंबर 7, दिस इज द नेशन एंड इट्स हीरोज. इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना. क्लियर? तो शुरू करते हैं. This one, women as rebels. You know that the condition of women, especially in Asia, is not equal to men. लेकिन अगर वियतनाम की अगर हम बात करें तो वियतनाम में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, women traditionally enjoyed greater equality than China. यानी कि वियतनाम में जो women थी उनको ज्यादा इक्वलिटी मिली हुई थी बाकी दूसरी एशियन कंट्रीज के मुकाबले. It means women had freedom, they had equality and they also had the rights equal to men. लेकिन फिर भी they could not think about their future as men used to think. यानी उतनी फ्रीडम उनको अभी भी नहीं थी. लेकिन after that the national movement questioned the role of women, and later some political leaders and thinkers and writers started to write on the role of women. They explained the bravery and great role of women in the past against the social norms. तो इस तरह से पास्ट में women ने क्या रोल प्ले किया नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड वुमेन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम यही बताएंगे कि नेशनल मूवमेंट के दौरान वुमेन के बारे में कुछ ऐसी किताबें लिखी गई, कुछ ऐसे नॉवेल्स, कुछ ऐसे प्लेज लिखे गए जिसमें ये पता लगा कि विमेन ने वियतनामीज पास्ट में काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अगेंस्ट द इंपीरियल एज वेल एज कॉलोनियल रूल्स. अंडरस्टैंड? यहां पे एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं. Nhat Linh. Nhat Linh was a Vietnamese writer and Nhat Linh wrote a novel in 1930. 1930 the novel name was Solitude. आपको याद रखना है, this was the novel written by Nhat Linh in 1930. Solitude ये एक ऐसा नोवेल था, इसमें Nhat Linh ने विमेन की फ्रीडम के बारे में लिखा and he explained about the freedom of and equality of women to men. और यहाँ पे एक ऐसी विमेन की स्टोरी इसमें लिखी कि जिसने शी लेफ्ट द फोर्स्ड मैरिज, उसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके और जो फोर्स्ड मैरिज थी उसको छोड़ के और शी मैरिड टू समवन एल्स हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो अपनी चॉइस से उसने जो है मैरिज की. इससे दो मैसेज यहाँ पे निकल के आए सोलिट्यूड से. एक, नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंपॉर्टेंस मिली और दूसरा, फ्रीडम ऑफ विमेन ऑल्सो बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा and with the help of these sentence we can understand this topic easily. Now we'll come to the next topic. The next topic is heroes of past times. Heroes of past times. In this part we will study about the role of women in the past. It means in the past against the Chinese domination. Chinese domination was called the imperialist rule and the French domination was called colonial rule. So against the colonial rule, as warriors we will study after a short while. First of all we will complete this chapter and in this part we will discuss about heroes of the past time. First of all, Trung sisters. Trung sisters. Who were Trung sisters? Trung sisters fought against Chinese domination in 39 to 43 CE, Christ era, right? And about these sisters, Trung sisters, Fan Boi Chao, we have discussed about this
nationalist Fan Boichao wrote a play in 1913. A play 1913 1913 में फान बोइचाओ ने एक प्ले लिखा, किस पे लिखा? ट्रंक सिस्टर्स की लाइफ पे, ऑन द लाइव्स ऑफ ट्रंक सिस्टर्स। तो ट्रंक सिस्टर्स कौन थे? दे फाउट अगेंस्ट चाइनीज डोमिनेशन इन द फॉरेस्ट, दे लेफ्ट होम एंड आफ्टर दैट दे गैदर्ड approximately 30,000 people and followers, right? And then they fought against Chinese domination, Chinese emperors. और तब जब वो हार गई, उनके फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो उन्होंने सरेंडर करने की बजाय सुसाइड कर लिया। सो इन दिस वे द सैक्रिफाइस ऑफ ट्रंक सिस्टर्स फॉर द नेशन बिकेम very important as whenever we ask about the whenever we discuss about role of women, तो ट्रंक सिस्टर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, एंड दे वर ग्लोरिफाइड and idealized by the writers and other means explorers and thinkers in the plays, in the books and stories, etc. तो इस तरह से they became the national means figures, right, among women against the Chinese domination and for the national movement, right? So this was the role of trunk sisters। और आपको याद रखना है ट्रंक सिस्टर्स की लाइफ के बारे में फान बोइचाओ ने एक प्ले में लिखा 1913 में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ट्रू। इसी तरह से जैसे ट्रंक सिस्टर्स ने चाइनीज डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया, उसी तरह से ट्रू ने भी चाइनीज डोमिनेशन के अगेंस्ट यानी कि चाइनीज राजा महाराजाओं के अगेंस्ट उसने लड़ाई लड़ी। और ट्रू के बारे में यह लिखा गया कि शी वॉज ग्रेट फाइटर इन 3rd century Christ era, and when she was child, then her parents died, or after the death of her parents she lived with her brother, and when she grew then she left home and she went to the forest, और फॉरेस्ट में जाके उसी तरह से उसने अपनी एक आर्मी तैयार की जिस तरह से ट्रंक सिस्टर्स ने की थी, और देन शी फाउट अगेंस्ट चाइनीज डोमिनेशन। और उसने भी मतलब सरेंडर करने की बजाय जो है शी ड्रॉन्ड हरसेल्फ इन द वाटर। It means this was also a great figure for the national movement, in the process of national movement, and she played very important role as women in the movement against Chinese domination। तो ये दो जो important figures आपको याद रखने हैं, ट्रंक सिस्टर्स एंड ट्रू। Understand? Now we'll study about the women as warriors। So the next topic is 7.3. This is women as warriors। अभी तक हमने पढ़ा विमेन का रोल किसमें? अगेंस्ट चाइनीज डोमिनेशन। इसका मतलब पुराने टाइम में, क्योंकि फ्रेंच इंडो चाइना कब बना? 1887 में, यानी कि 19th सेंचुरी में। उससे पहले क्या था? चाइनीज एम्परर्स थे, और पुराने टाइम से ही चाइनीज जो रूलर्स थे वो वियतनाम में रूलिंग करते थे। तो उनके अगेंस्ट यानी कि चाइनीज डोमिनेशन के अगेंस्ट जो विमेन ने फाइट किया, उसके बारे में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, ट्रंक सिस्टर्स एंड ट्रू। अब हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड इन द वॉर्स, व्हाट रोल वाज प्लेड और हैज बीन प्लेड बाय विमेन इन वियतनाम। सो विमेन एज वॉरियर्स मतलब उन्होंने फाइट भी किया, वॉर्स में फाइट किया और हेल्प की। तो सबसे पहले 1960s की बात करते हैं, जब विमेन वियतनाम में विमेन वर शोन इन द पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, पोएम्स एंड स्टोरीज एटसेट्रा, fighting in fighting figure and brave figure, national figure, right? So they were portrayed as young, brave and dedicated during this period। clear? इसी तरह से एक एग्जांपल अगर हम लें नुगेन दी जुएन का, जिसने 20 बुलेट्स में, जस्ट इन 20 बुलेट्स she shot down a jet in the Vietnamese war। उसने जेट को गिरा दिया। तो इस तरह से ब्रेव विमेन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी पेंटिंग्स और इस तरह के आर्टिस्टिक फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिले 1960s में। आगे चलते हैं, विमेन वर रिप्रेजेंटेड एज वॉरियर्स एज वेल एज वर्कर्स ऑल्सो। तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ बंदूक चलाई, उन्होंने एक वर्कर के फॉर्म में भी रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेंटिंग्स में अगर हम एक पेंटिंग का एग्जाम्पल लें, तो उसमें एक विमेन को एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में हैमर यानी कि हथौड़ा लिए हुए दिखाया गया। इसका मतलब शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ
वॉरियर ऑल्सो एंड एज वर्कर ऑल्सो। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिली। और जब 1970s तक आते आते कैजुअलिटीज बड़ी हाई हो गई थी, तो विमेन ने उस समय जो बाउंडेड पीपल थे, सोल्जर्स थे, उनकी हेल्प करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके साथ साथ में दे ऑल्सो मीन्स वर्कड एज वर्कर्स ऑल्सो इन द वॉर। इसके बाद चलते हैं ऑन द होचिमिन ट्रेल। विमेन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन होचिमिन ट्रेल। होचिमिन ट्रेल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दिस ट्रेल वाज immense network of paths through the roads and other networks, means unmetalled ways through the forest and mountains and tunnels etc. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता था और इस पे विमेन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि 1965 से 1975 तक अगर हम देखें तो इस रास्ते पे लगभग 17,000 जो यूथ था वो इसमें इन्वॉल्व था एज वर्कर्स, और वहां पे लगभग इसमें से 70 to 80% वर विमेन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विमेन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे किया था। इसके अलावा होचिमिन ट्रेल पे 2195 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक रोड था जिसके ऊपर विमेन काम करती थी, और इसके साथ साथ में उन्होंने लगभग 2500 की पॉइंट्स, they developed 2500 key points to protect their different kinds of points. There were for taking care of wounded soldiers and preparing the food for soldiers and transporting the essential commodities along with weapons to the soldiers। इस तरह की चीजों के लिए की पॉइंट्स बने हुए थे, तो इन पे भी विमेन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और साथ में आपको ये भी बताया गया था पिछले वीडियो में कि विमेन ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पोर्टर्स, राइट, क्योंकि उन्होंने सामान भी जो है अपनी बैग्स पे या साइकिल्स पे सामान भी सप्लाई किया था। तो ये रोल ऑफ विमेन है। इसके बाद में विमेन इन टाइम्स ऑफ पीस, तो ये तो वॉर के फॉर्म में हो गया कि ड्यूरिंग द वॉर व्हाट रोल वाज प्लेड बाय विमेन। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में किया। इसमें एक में तो किया कि किस तरह से उन्होंने फाइट किया, खुद बंदूकें चलाई, और दूसरे पार्ट में हमने किया कि होचिमिन ट्रेल पे इनडायरेक्टली युद्ध ना लड़के भी उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, एक एज वर्कर के फॉर्म में या हेल्पर के फॉर्म में, और बिना उनके इस युद्ध को नहीं लड़ा जा सकता था। इसके बाद आते हैं विमेन इन टाइम्स ऑफ पीस। जब वॉर खत्म हो गया, इट मींस 1975 के बाद में वॉर खत्म हो गया, तो उस समय उन्होंने क्या रोल प्ले किया? नाउ द विमेन प्लेड रोल एज वर्कर्स, मींस in agricultural fields, they worked in the agricultural fields, they worked in cooperatives, clear, and they also worked in factories, production units. So in this way we can say they played a very important role, very crucial role in the peace time also, कि जब युद्ध खत्म हो गया उस टाइम भी उन्होंने इस तरह का जो है कंट्रीब्यूशन किया इकोनॉमी के लिए एज वेल एज सोशल मींस नॉर्म्स के लिए और नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने काम किया, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक इन दिस वीडियो। नाउ आई डिस्कस वेरी स्मॉल टॉपिक इज लेफ्ट, लेट्स डिस्कस। So this is the last topic, the end of the war. The US failed to achieve its objectives. ये सबको पता है कि US जो चाहता था वो नहीं हुआ। जिस पर्पज से US ने वॉर में एंट्री की, right, with the purpose the US entered into the war in Vietnam, it could not achieve its objective, कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया, यूनिफिकेशन को रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया। उल्टा यूएस का कितना नुकसान हुआ ये भी आपने चैप्टर में देखा कि उसके कितने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड, इंक्लूडिंग 47,244 सोल्जर्स वर किल्ड एंड इंक्लूडिंग मोर देन 3 लाख सोल्जर्स वाउंडेड इन द वॉर, ये भी आपने देखा। हालांकि वियतनामी सिविलियंस जो है वो बड़ी संख्या में मारे गए थे, लेकिन यूएस का भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस तरह से जो वॉर था, इट वाज प्रोलॉन्ग्ड वॉर, द यूएस वाज फेड अप कंप्लीटली and the public of the US was completely against the government, और बार बार उस पर प्रेशर आया गवर्नमेंट पे कि इस वॉर से यूएस को हटा लिया जाए, यूएस जो है वो इस वॉर को बंद कर दे, इस तरह की चीजें आई। और कुछ एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, सेलिब्रिटीज के एग्जांपल ले सकते हैं। मैरी मैकार्थी राइटर एंड जेन फोंडा एक्टर, दे विजिटेड नॉर्थ वियतनाम, और उन्होंने नॉर्थ वियतनाम में जाके जब देखा कि एंड दे ऑल्सो प्रेज्ड द
रोल प्लेड बाय वियतनामीज पीपल कि उनके पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इसके बावजूद वो कितनी बहादुरी से यूएस के खतरनाक और डेंजरस वेपन्स का उन्होंने सामना किया, उन्होंने फेस किया। तो इसलिए ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस तरह से यूएस के लोगों ने वियतनामीज को प्रेज किया, राइट, फॉर देयर हीरोइक रोल एंड ब्रेवरी। आफ्टर दैट नोम चॉम्स्की, एक और नाम आता है अमेरिकन फिलोसफर, ग्रेट अमेरिकन फिलोसफर नोम चॉम्स्की, कॉल्ड द वॉर, उसने कहा द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पीस। ये जो वॉर था इसके बारे में चॉम्स्की ने कहा इट वाज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पीस एंड टू नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन एंड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस वॉर को उसने बहुत ही नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया और अपने आइडियाज में, अपने व्यूज में, तो लोगों को एट लास्ट पता लगा कि द वॉर वाज नॉट गुड फॉर द यूएस एज वेल एज वियतनाम के लिए तो अच्छा था ही नहीं, यूएस के लिए भी अच्छा नहीं था। फाइनली इस वॉर को खत्म होना ही था एंड देन according to Paris Treaty January 1974 US was separated from the war and after that साइगोन पे जब एनएलएफ ने जब कब्जा कर लिया 30 अप्रैल 1975, तब जो है वियतनाम पूरी तरह से क्या बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया एंड वियतनाम यूनिफाइड अकॉर्डिंग टू मींस दिस ऑक्यूपेशन बाय द एनएलएफ ऑन साइगोन सिटी। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक या किसी तरह का कोई डाउट अगर आपको होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।